So hi everyone, welcome back to yet another super informative biology live session on the wonderful and beautiful platform of Avanti. So today we are going to learn about respiratory organs which are required for respiration, and we will be learning about some examples related to it. Then we will proceed forward to learn what? Regulation of respiration. Okay, and we will do some questions, some previous year NEET questions today. Okay, this is lecture number 6 on the topic breathing and exchange of gases. So starting with respiratory organs. So we have different organs to respire in different organisms, right? अलग अलग organism में अलग अलग respiratory organs होते हैं, fact है ना? अगर आप इनवर्टिब्रेट से स्टार्ट करोगे, आप देखोगे उनकी बॉडी से ही गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं. लोअर इनवर्टिब्रेट है ना, मान लो प्लैटीहेल्मिन्थ तक मान लो कि जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ, उनके बॉडी में गैसियस एक्सचेंज उनके सरफेस से हो जाता, उनके बॉडी सरफेस से ही हो जाता है. ऑक्सीजन अंदर आ जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है. प्रोसेस इज डिफ्यूजन. प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन. व्हाट इज द प्रोसेस? डिफ्यूजन, राइट. फिर आप एनेलिडा, अर्थवर्म, ये सब अगर देखोगे तो वो कैसे करते हैं रेस्पिरेशन? उनकी बॉडी में क्यूटिकल की लेयर होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल. उसकी हेल्प से वो कर लेते हैं रेस्पिरेशन. क्यूटिकल की हेल्प से जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन बहुत इजी है. अर्थ्रोपोडा आ जाओ, थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा. अर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स वगैरह में क्या होंगे? अर्थ्रोपोडा सिंस इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा है ना अर्थ्रोपोडा, तो बहुत तरीके की चीजें मिलती है, बहुत तरह के इंसेक्ट होते हैं, right? So Khushi is saying my voice is not coming. Is it happening with everyone? Am I audible? Click on yes. So Numan is saying I am audible. That means Khushi, problem is at your end. Everyone is able to hear. Okay. So yeah, in Arthropoda, since the king it is very large, so different organs are there to respire in different Arthropoda. Tracheal tube, they have development of trachea, network of trachea tube in insect. They have gills in aquatic arthropoda. If the arthropoda lives in water, they will have gills. Similarly, for mollusca also, aquatic mollusca, they will have gills. Right? Some of the terrestrial form of mollusca, they can have lungs also. For respiration. Right? Similar, again, Echinodermata is there. Echinodermata will do what? They have gills, right? Echinodermata. Yes. They also have ambulacral system, remember? They also have ambulacral system, water vascular system. Coming to Param, P has gills, Pisces. Amphibian can do respiration with gills, lungs, as well as skin. Right? When they are in water, they will use their gills. When they are in the land, they will use their lungs and skin. Reptiles, lungs. Aves, lungs. Mammals, lungs. Okay, so these are some respiratory organs in different organisms. So you should remember this arthropoda, tracheal system, aquatic, gills, Annelida earthworm, moist cuticular respiration. Lower invertebrate, they can do the gaseous exchange by the body surface. That's all. There are so many things which you can learn actually, but
I am giving you only NCERT because this only is going to come. They will give you match the following, like that questions they can frame. Okay? Now, something which is not there in NCERT about respiratory pigment. We have hemoglobin. Our respiratory pigment is what? Hemoglobin. So if it is in vertebrate, if it is in what we are vertebrate, right? So if it is in us vertebrate, we call it as hemoglobin. But if this hemoglobin is present in invertebrate, if this hemoglobin is present in invertebrate, you will call it as erythrocronin. Why? Because in us, RBC has hemoglobin. RBC has hemoglobin. But in invertebrate, hemoglobin is in plasma. Hemoglobin is in plasma. Hemoglobin is not present in RBC. Hemoglobin is present in plasma. That is why we don't call it as hemoglobin. Instead, we call it as erythrocronin. So the hemoglobin of invertebrate is called as erythrocronin. Reason is they are found in plasma. They are not found in RBC. Hemocyanin. Cyano matlab blue. Cyano matlab blue. Blue blood. They have copper. They have what? Copper. Right? In some of the arthropoda and mollusca. In some of the insect. Remember, I have taught this. Give me an example for blue blood. Some of you only had texted me. Ma'am, this is having blue blood. Example? Anyone knows? Example of organism having blue blood? Think, I had told, Hanuman, octopus. Right? Yes? Then chlorocronin. Chlorocronin, blood will be green. Chloro, blood will be green. Blood will be green. They have iron. Okay? You can find it in Annelida. Before these questions used to come, example based question, before it used to come. Now, maximum what will be asked? That hemocyanin has which pigment? Copper. Chlorocronin, respiratory pigment, has which iron? Iron. Pinnaglobin, manganese. And vanadium has vanadium. Only these are the possibilities. Example mostly they will not ask. Before they used to ask examples. ठीक है? All right? Yes, Khushi. Depending on which pigment we have, our color varies. Okay? Hemocyanin, copper. Chlorocourin, green. Pinnaglobin, brown. And vanadium will have no color. Okay? Vanadium. It's an element, V. Okay? So you need to remember these. Which element is there and what color is there? That is all. Element and color. Okay? Moving forward. Very important topic. So many times questions are being asked from this topic. Respiratory quotient. Respiratory quotient. What do we do exactly in respiration? What do you take inside? Oxygen. What do you give outside? Carbon dioxide. You take inside oxygen, you give outside carbon dioxide. Right? तो उसका रेशियो निकालो, that is a respiratory quotient. आप ऊपर रखोगे कितना CO2 आपने रिलीज किया, एंड डिनोमिनेटर में रखोगे कितना ऑक्सीजन आपने कंज्यूम किया. वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, कितना CO2 रिलीज करा एंड कितना O2 कंज्यूम किया. रिएक्शन याद है कुछ?
रिस्पिरेशन का रिएक्शन पता है, C6H12O6 प्लस 6O2, ये आपको देगा 6CO2 प्लस 6 वाटर, राइट। तो बताओ कितना CO2 रिलीज हुआ, कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हुए। अगर आप ग्लूकोज को ब्रेक करते हो, अगर आप ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हो, कितना CO2 रिलीज हुआ, कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हुए, क्या 6 हुए, बिल्कुल। चलो न्यूमरेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर में बताओ कितने O2 यूज किए, 6, यही RQ है। RQ की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये ग्लूकोज आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, राइट। व्हाट इज दिस ग्लूकोज, व्हाट इज दिस ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट है ना कि नहीं है, इट इज कार्बोहाइड्रेट। तो हमें आरक्यू की वैल्यू जाननी होती है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के एनर्जी लेते हैं तो आरक्यू की वैल्यू क्या है, कितना CO2 निकलेगा, कितना O2 कंज्यूम होगा। प्रोटीन को अगर हम सबस्ट्रेट लेते, यहाँ पे रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, किस मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किस मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो। अगर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ोगे तो वैल्यू 1 होगा, अगर प्रोटीन्स को ब्रेक करोगे तो 0.87 या 0.9 बोल सकते हो उसको राउंड अप करके, फैट्स के लिए 0.7 बोलोगे, ऑर्गेनिक एसिड के लिए मोर देन 1 बोलोगे। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस वैल्यू पे। मैं ये आपको समझा भी सकती हूँ, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 दिखाया ना, वैसे मैं प्रोटीन फैट के लिए बता सकती हूँ कि इसकी वैल्यू कम क्यों हो रही है। सुनो, इसकी वैल्यू अगर कम होनी है, 1 से कम, इसकी वैल्यू कब होगी, जब डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होगा, जब डिनोमिनेटर का वैल्यू 6 से बड़ा होगा। व्हेनेवर डिनोमिनेटर का वैल्यू इससे बड़ा होगा, वैल्यू 1 से कम आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। नीचे की वैल्यू बड़ी होगी तो 1 से कम आएगी वैल्यू, सिंपल मैथ्स है ना। तो अगर हम प्रोटीन लेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि हमें ऑक्सीजन को ज्यादा देना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन को ज्यादा देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर फैट्स लेंगे तो हमें ऑक्सीजन को ज्यादा देना पड़ेगा, हम ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे और उससे फिर एनर्जी रिलीज होगी, है ना। किसी ने मुझसे पूछा था जब मैं क्लास स्टार्ट कर रही थी, तो मैम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेंगे या जो और खाना खाते हैं उसको भी ब्रेक करेंगे। बिल्कुल सबको करेंगे, सबको करेंगे, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ग्लूकोज में। मतलब ध्यान से सुनो, अगर मैंने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ध्यान से सुनो, प्रोटीन लिया है, मतलब मुझे कुछ कुछ ऑक्सीजन तो पहले ही देना पड़ेगा, इसको कुछ कुछ ऑक्सीजन तो पहले देना पड़ेगा, फिर जाके ये पहुंचेगा ग्लूकोज में, उसके बाद जाके ये 6 ऑक्सीजन और लेगा। तो इतना तो कंफर्म है 6 तो देना ही देना है, प्लस और देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, उसको यहां तक पहुंचाने के लिए, है ना। उसी तरह कहानी आपकी फैट्स की भी हो जाएगी, उसको यहां तक पहुंचाने के लिए कुछ ऑक्सीजन तो देना ही पड़ेगा, 6 तो पहले से दे रहे थे, और देना पड़ेगा। तो और दोगे तो क्या ये वैल्यू 6 रहेगी, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही इंक्रीज होगी डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा, और जब डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा, वैल्यू होगी 1 से कम, 1 से कम। तो रटना पड़ेगा क्या, नहीं, आपको इतना पता होगा कि लेस देन 1 होगा प्रोटीन और फैट्स का, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड में आ जाओ, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा, मैंने बोला इसकी वैल्यू मैं बोल रही हूँ 1 से ज्यादा है। क्यों बोल रही हूँ 1 से ज्यादा है, क्योंकि सुनो, 1 से ज्यादा का मतलब तो समझ आ गया होगा कि आरक्यू जो होगा आपका 1 से ज्यादा कब होगा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा एंड डिनोमिनेटर छोटा होगा। मतलब मान लो इसको 6 लिख दिया
इसकी वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो 1 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक एसिड का क्या स्टोरी है? हमारा रेस्पिरेशन 3 स्टेप में होता है। ग्लूकोज आपका टूटेगा ग्लाइकोलिसिस से पहले। ये सब पढ़ोगे, ऐसा मत सोचना मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो हमें डिटेल में सीखने को नहीं मिलेगा। मैं बस ऐसे समरी बता रही हूँ, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में, है ना, सर पढ़ाएंगे आपको शायद आपसे। तो ग्लाइकोलिसिस हो गया, एंड ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। मान लो मैं क्रेब्स साइकिल से कोई मॉलिक्यूल को उठाई, मैंने क्रेब्स साइकिल से किसी मॉलिक्यूल को उठाया, मैंने ग्लूकोज नहीं लिया, मैंने ग्लूकोज नहीं लिया, मैंने क्रेब्स साइकिल से किसी मॉलिक्यूल को उठाया। अगर मैं क्रेब्स साइकिल से किसी मॉलिक्यूल को उठा रही हूं तो मेरी एनर्जी तो अब कम लगेगी ना, मुझे कम ऑक्सीजन देना पड़ेगा, मुझे ये कम देना पड़ेगा कि नहीं? 6 से, देखो 2 केसेस है जिसमें आपको वैल्यू 1 से बड़ा होगा। अगर मैं इसको 6 रहने दूं और इस वैल्यू को 6 से कम कर दूं, 6 से अगर कम करूंगी तब भी आपका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर मैं ऊपर वाले को 6 से ज्यादा कर दूंगी तो भी मेरा वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। होगा ना दोनों ही केसेस में? ध्यान से सोचो, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, इसको बड़ा कर दूं तो 1 से ज्यादा, यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ एक्चुअली। अगर मैं इसको कम कर रही हूँ, अगर मैं इसको कम कर रही हूँ मतलब इनडायरेक्टली मैं इसी को बड़ा कर दी ना। तो अगर मैं कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से लूं बीच से, तो मुझे ऑक्सीजन कम देना पड़ेगा अब इसको तोड़ने के लिए। मुझे पूरा 6 ऑक्सीजन यहाँ ग्लूकोज से लेके यहाँ तक वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया मैंने। जब डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया, जब डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया तो ऑक्सीजन कम लगेगा, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो चुकी है, तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि नहीं? ये मैंने बस समझाने के लिए बोला है, मेरे से झगड़ा मत करना आके, ठीक है? कुछ अलग हुआ तो ये मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया है, समझे? इसीलिए ऑर्गेनिक एसिड की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, ठीक है? और प्रोटीन फैट की वैल्यू 1 से कम होती है, कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू 1 होती है, समझे? ये आपको शादाब सर भी पढ़ाएंगे, एक्चुअली ये वही का टॉपिक है, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, वहां पे पढ़ाएंगे आपको आरक्यू, ठीक है? चलो, so that is RQ। अब चलते हैं, कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। Any doubt is there, you can ask. How many groups of respiratory centers are there? How many groups of respiratory centers are there? कुछ आइडिया है? मेड्यूला के आसपास कितने रेस्पिरेटरी सेंटर्स है? 3, 1 2 3 हो जाओ फ्री, है ना? 1 2 3 हो जाओ फ्री, इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ूंगी, राइट? यू हैव सम मोर, वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, उसके बाद छोड़ दूंगी आज। हाउ मेनी ग्रुप्स? 3 ग्रुप्स। कौन कौन से है? डॉर्सल है, वेंट्रल है एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, समझा? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, गॉट इट? ये 3 होगा। अब देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होगा? देखो कहाँ प्रेजेंट। मान लो ये मेड्यूला है, मान लिया, मान लो ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा है, यहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ठीक है? दिस इज मेड्यूला। तो मान लो ये मेड्यूला है, मेरा ये मेड्यूला है सिर्फ, मैं बोल रही हूँ मेड्यूला के डॉर्सल साइड में एक ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो बताओ वो किधर है? डॉर्सल इधर है या पीछे है? किधर है?
मेड्यूला एक 3D स्ट्रक्चर है ना, अंदर में एक 3D स्ट्रक्चर है, मेड्यूला एक 3D स्ट्रक्चर है। तो अगर ये मेड्यूला है तो बताओ उस साइड होगा डॉर्सल साइड या पीछे होगा, ये वाला अंगूठा वाला, थंब वाला? डॉर्सल, सृष्टि डॉर्सल बताओ, लिटिल फिंगर की तरफ होगा या थंब की तरफ होगा? बताओ, ये आपका है मेड्यूला, थंब की तरफ होगा ना। वेंट्रल हमेशा सामने होता है एंड डॉर्सल हमेशा पीछे होता है। तो मान लो मेड्यूला एक 3D इमेज है आपके बॉडी में, तो मेड्यूला के पीछे, मेड्यूला के पीछे, मेड्यूला अगर ये है तो मेड्यूला के पीछे आपको मिलेगा डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप, समझे? DRG, मेड्यूला के पीछे, मेड्यूला के पीछे, है ना। मान लो ये मेड्यूला, तो मेड्यूला के पीछे आपको मिलेगा उसके डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप। और मेड्यूला के आगे क्या मिलेगा? मान लो ये मेड्यूला है तो मेड्यूला के आगे मिलेगा वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप और पीछे मिलेगा डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप, समझे? है ना। ये जो डॉर्सल है ये सिग्नल भेजेगा किसको? बताओ ये कौन सा है स्ट्रक्चर? ऐसा सी के जैसा, कर्व के जैसा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? बताओ, क्या मैंने ड्रॉ किया है? हाँ, अनुमान को पता चला, डायफ्रैगम लग रहा है ना, तो इट इज डायफ्रैगम, इट इज डायफ्रैगम। ओके, सो ये सिग्नल्स भेजता है डायफ्रैगम को और आपका नॉर्मल चीजें कंट्रोल होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, डॉर्सल। ठीक है, वेंट्रल पे आ जाओ, वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप, इनहैंस्ड रिस्पिरेशन रिक्वायरमेंट, समझ आ रहा है कुछ? इनहैंस्ड, मान लो कभी मन किया ज्यादा हवा ले ले, कभी मन किया ज्यादा छोड़ दे, है ना, ऐसा कभी मन करता है तो कौन करवाता है ये काम? आपका जो एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, रिमेम्बर? तो वो सारी चीजें कैसी होंगी? वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप वो कंट्रोल करेगा। इनहैंस्ड रिस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए। ठीक है, ये तो समझा होगा। अब आ जाओ न्यूमोटैक्सिक सेंटर में। न्यूमोटैक्सिक सेंटर तीसरा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? पॉन्स में। कहाँ प्रेजेंट है? पॉन्स में। दिस इज योर पॉन्स। पॉन्स में क्या प्रेजेंट है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये क्या करता है? जैसे ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर को सिग्नल पहुंचता है ये क्या बंद कर देगा? क्या बंद करेगा? क्या बंद करेगा? इंस्पिरेशन। आप फटाक से एक्सपिरेशन करोगे, समझे? मतलब ये बोलता है कि सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो चुका है, मत लो सांस अंदर, मत लो। तो फिर न्यूमोटैक्सिक एक्टिव होता है और इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ करता है। स्विच ऑफ किया एंड देन आप एक्सपायर करते हो। तो कब ऐसा होगा? जब CO2 ज्यादा होगा। जब CO2 ज्यादा होगा तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन को बंद करेगा और एक्सपिरेशन, जल्दी जल्दी हवा छोड़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। क्या होगा ब्रीदिंग रेट को? What will happen to breathing rate? It will increase. आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी ज्यादा छोड़ोगे, ज्यादा छोड़ने की कोशिश करोगे, लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा छोड़ने की कोशिश करोगे, समझे? NCERT अगर पढ़ोगे तो वहां कुछ ऐसा लिखा है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स, वो कंट्रोल करते हैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, यही लिखा है NCERT में। अब आप NCERT पढ़ो, आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या बोल रहा है। इतना तो ठीक है, मैंने बोला कि कब होगा ये? जब CO2 बढ़ जाएगा। अब CO2 बढ़ेगा तो कौन बताएगा? बताओ, हु विल टेल अस कि सुनो, ब्लड में ना CO2 बढ़ चुका है, आप बाहर करो CO2,
कौन बताएगा ये? हर कुछ रिसीव करता है, स्टिमुलस को कोई रिसीव करता है, कपाल वाल हाँ दृष्टि, वैसे हाँ हाँ, जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिव हो जाएगा तो वैसे ही करेंगे हम। ब्लड टेस्ट करो, नो रोहित, हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे, है ना? कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स, केमिकल सेंसिटिव रिसेप्टर्स होंगे, जो फाइंड आउट करेगा कि CO2 का लेवल बढ़ चुका है ना? हमारे ब्लड में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ट के पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मेडुला के पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब पता करता है क्या CO2 का लेवल बढ़ रहा है। जैसे ही बढ़ रहा है, इंस्पिरेशन को ऑफ करो और एक्सपिरेशन को चालू करो और ब्रीदिंग रेट को फास्ट करो। ठीक है, तो हम सीखने वाले हैं केमिकल कंट्रोल कैसे होता है, CO2 कितना ज्यादा कितना कम। तो उसके लिए कीमोरिसेप्टर्स होंगे, ब्रेन में होगा। तो ब्रेन में जब होगा उसको क्या बोलोगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? तो हम मेडुला के चारों तरफ जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जो CO2 सेंसिटिव होंगे, किसके सेंसिटिव होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव होंगे, उसको बोलोगे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। क्या बोलोगे? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, फिर जो आपका आर्टरी वगैरह में जहां ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल्स में, जो बॉडी में आपके ब्लड वेसल्स दौड़ रहे हैं, उसमें भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? उसको बोलोगे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर which are sensitive to carbon dioxide level, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। तो आपके ब्लड वेसल्स में है, आपके मेडुला के चारों तरफ भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो क्या होगा? ये एक्टिव हो जाएगा, सारे रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे। सारे रिसेप्टर्स एक्टिव होके किसको सिग्नल देंगे? सिग्नल देंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा? इंस्पिरेशन को ऑफ करेगा। ऑफ करो इंस्पिरेशन, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बाहर बाहर। दैट इज व्हाट इज गोना हैपन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोर CO2, H+ ज्यादा, O2 कम, ये सब है। एक एक करके अगर सीखना चाहते हो तो सीखो। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो क्या करो? इंस्पिरेशन को कम करो, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाओ, एक्सपिरेशन करो, तुरंत एक्सपिरेशन करो, रेट ऑफ ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दो। लेकिन मान लो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन भी कम है एंड क्या, CO2 भी ज्यादा है। समझ रहे हो कुछ? ये कंडीशन समझ रहे हो? ऑक्सीजन कम है मतलब आपको इंस्पिरेशन भी करना है, एंड CO2 ज्यादा है मतलब एक्सपिरेशन भी करना है। तो क्या होगा? फास्ट तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, डेप्थ भी हमारा बढ़ जाएगा, हम ज्यादा कोशिश। दिस इज व्हाट वी विल डू। ओके, रेट भी बढ़ेगा एंड the amount of air which you will take inside and which you will give out, depth, वो भी बढ़ेगा। ये कौन से केस में बढ़ेगा डेप्थ? जब O2 कम होगा एंड CO2 ज्यादा होगा। ओके? जब O2 कम होता है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। कम है O2। जब CO2 ज्यादा होता है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर कैप्निया। हाइपर मतलब ज्यादा ना, हाइपर कैप्निया, मोर कार्बन डाइऑक्साइड। हाइपोऑक्सिया, हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन। जब ये दोनों कंडीशन होगा तो आपका रेट भी इंक्रीज होगा और डेप्थ भी इंक्रीज होगा। जब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा? अब
सिर्फ जल्दी जल्दी सांस लोगे, रेट बढ़ जाएगा लेकिन डेप्थ नहीं बढ़ेगा। आप डेप्थ को नहीं बढ़ाओगे क्योंकि आपको हवा नहीं चाहिए, अंदर नहीं चाहिए, आप बाहर करना चाहते हो ज्यादा। समझ आ रहा है कुछ? अगर सिर्फ CO2 ज्यादा है, पहला तो ये क्वेश्चन का आंसर करो, आपका जो रिसेप्टर्स है वो किसका सेंसिटिव है? CO2 का। सबसे ज्यादा किसके लिए है? CO2 के लिए है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव वो CO2 से है। वो CO2 के ज्यादा और कम से सब कुछ पता करता है। ज्यादा है एक्सपायर करो, कम है इंस्पायर करो। ठीक है, तो ज्यादा है तो इंस्पिरेशन को बंद करो, स्लो करो, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाओ, एक्सपिरेशन करो। समझे? दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। कोई डाउट है पूछो, एनी डाउट इज देयर आस्क। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, हेरिंग BREUR, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ठीक है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या होता है? इसमें आपके ब्रोंकियोल्स को भी नहीं छोड़ा, ब्रोंकियोल्स में भी रिसेप्टर्स होते हैं। हवा अंदर आ रहा है, आप इंस्पायर करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। ऐसा तो हो सकता है ना, बलून में अगर हवा डालते जाओगे तो बलून फट तो जाता है, कभी होता है कि नहीं? एक बलून ले लो, ट्राई टू ब्लो एयर एज मच एज यू कैन। एक टाइम आएगा जब बम फूट जाएगा वो। उसी तरह लंग्स में भी अगर हम एयर लेते जाएंगे तो क्या होगा? कभी ना कभी वो भी फूट जाएगा, बूम। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल के वॉल्स में, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के वॉल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं कि भाई इतना ही फैलना है तुझे, इससे ज्यादा फैलेगा तो मैं कंप्लेन कर दूंगा, इतना ही हवा लेना है तुझे। तो जैसे ही ज्यादा हवा होने लगता है ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर से कहाँ जाएंगे? न्यूमोटैक्सिक सेंटर को जाएंगे और क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन को बंद करो, इंस्पिरेशन को बंद करो। तो दिस इज हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। समझे? तो ये प्रोटेक्शन है हमारे लंग्स के लिए, इट इज अ प्रोटेक्शन कि ज्यादा अगर हवा चला जाए तो वो लंग्स क्या हो जाएगा? पूरा फूल जाएगा एकदम, राइट? फट भी सकता है, यू नेवर नो। तो टू प्रोटेक्ट आवर लंग्स, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंटिंग एक्सेसिव इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स, मतलब बहुत ज्यादा फूल ना जाए वो, इसके लिए है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ठीक है, तो हम उस पर एक्सपायरेशन करेंगे, इंस्पिरेशन को रोक देंगे, अचानक से रोकेंगे, एक्सपिरेशन करेंगे। ओके, सो दैट इज दैट। नाउ कुछ डिसऑर्डर्स है, वो डिसऑर्डर्स मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। आई वांट यू टू गो थ्रू इट एंड देन आप हमसे खुद से आप पूछ सकते हो कि मैम ये क्या होता है, वो क्या होता है, एस्थमा क्या होता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है। सो यू कैन गो थ्रू एनसीईआरटी के डिसऑर्डर्स, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, उसके बाद यू कैन गेट बैक टू मी। सो दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, डोंट वरी रोहित, आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। ये बस छोटा सा होमवर्क दिया है मैंने। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। डू द फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स, वो बाद में करेंगे। डू द सेकेंड क्वेश्चन, हमने नहीं किया है ना ये सब। मैच द आइटम्स, हाँ अनम्यूट कर देती हूँ, सही बात है, वेट। पोल भी कर सकती हूँ, ठीक है, आई एम लॉन्चिंग द पोल एज वेल, ताकि मेरे को ज्यादा करेक्ट डिटेल्स मिले। Okay, so I'm launching the poll for this question. Answer it. टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? सोचो। इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? सोचो। एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? सोचो।
एंड रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, सोचो। रेसिडुअल वॉल्यूम इज दिस, राइट? Yes or no? I think this na 1200 ml. 1200 ml is residual volume. B is correct. मैंने लॉन्च नहीं किया पोल, मैंने पहले ही आंसर बोल दिया। ठीक है, इग्नोर। नहीं 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 नहीं, ये वैलिड नहीं है। आई एम एंडिंग इट। सब सही कर रहे हो, हाँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी डिसऑर्डर से ही है। क्वेश्चन नंबर 4 करो। 2017 का क्वेश्चन है ये। आई एम रीलॉन्चिंग इट। क्वेश्चन नंबर 4। मैम आंसर्स तो मार्क्ड है। हाँ, आंसर स्मार्ट है क्या? कोई आपको किसने बोला ये आंसर है? दिस इज नॉट द आंसर। चेक इट आउट अगेन। आपको कैसे पता चला वो आंसर है? दैट्स नॉट द आंसर। यू राइट द आंसर, करेक्ट आंसर, ओके? दैट्स नॉट द आंसर। ठीक है, चलो डन। Every answer is matching with it. Yes, then, yeah. It's fine, it's fine. I just want you to, go through the questions and see whether you know the answers or not. ठीक है? Going for the next question. Question number 5. At least कभी तो कोई गलत नहीं करेगा, नहीं तो हमेशा एक ना एक स्टूडेंट होगा जो कुछ ना कुछ गलत करते हैं। Partial pressure of oxygen in the alveoli of the lungs is, alveoli में जो पार्शियल प्रेशर होता है लंग्स का, वो क्या होगा बताओ? सॉरी, एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो क्या होगा? ब्लड से ज्यादा होगा। देखो देखो देखो, गलत होना स्टार्ट हो चुका है। देखो, एल्वियोलाई है, ये ब्लड है। ब्लड का ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे, एंड एल्वियोलाई का क्या होगा? हमेशा एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन आता है ना, तो एल्वियोलाई का हमेशा क्या होना चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमेशा ज्यादा होना चाहिए, मोर देन दैट इन द ब्लड, है ना? 7 लोगों ने करेक्ट किया है और 4 लोगों ने गलत किया है, एंड 5 लोगों ने आंसर नहीं किया है। मतलब उनको पता नहीं है आंसर। क्या चक्कर है? चलो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6, ओके? Don't look at the answer, just try to, go for the right answer. Question number 6. Lungs do not collapse between breaths, and some air always remains in the lungs, which can never be expelled. Why? हमेशा लंग्स के अंदर क्या होता है? उसको चाहिए। हमेशा लंग्स बोलता है मेरे को चाहिए, नेगेटिव में रहता है हमेशा। कौन सा इंसान बोलेगा मेरे को हमेशा पैसे चाहिए? वो हमेशा लोगों को दिखाएगा मेरे पास नहीं है यार, मैं ऑलरेडी नेगेटिव में हूँ, मैं ऑलरेडी कर्ज में हूँ, आई एम ऑलरेडी ब्रोक मैन, कुछ पैसा नहीं है मेरे पास। बोलते हैं ना लोग, यस, कैश क्रंच चल रहा है, होगा पैसे, होगा, लेकिन स्टिल दे विल शो एज इफ दे डोंट हैव इट, राइट? वैसे ही लंग्स भी शो करता है एक नेगेटिव प्रेशर। इंट्रा मतलब विद इन, पल्मोनरी मतलब विद इन लंग्स प्रेशर, नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जिससे वो बोलता है मेरे पास नहीं है, मेरे को चाहिए, तो आराम से एयर अंदर आता है। देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग द लंग्स वॉल कि मेरे को चाहिए एयर, ओके? 6 वाला हो गया। और कोई क्वेश्चन है? चलो ये करो तो। क्वेश्चन नंबर 20, 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20,
हाँ सृष्टि, रह सकती है, रह सकती है, बट मोस्टली सारे निकल ही जाते हैं, बट रह सकते हैं। ओके। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या वैल्यू है इसकी? 1200, है ना? ये वाली आपको ग्राफ, रेसिडुअल वॉल्यूम 1200, वन की वैल्यू 1200 है यहाँ पे, राइट? वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आपको ये ग्राफ अगर बना लोगे तो आंसर मिल जाएगा। सही आंसर देना, क्योंकि मेरे को सब अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कुछ 2500 है ना आपका, 3 का होना चाहिए 2500। 3 किसी में भी 3 का नहीं है, ये गलत है, इसको एलिमिनेट कर दो, ये गलत है। 3 का होना चाहिए था 2500। रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 चेक करो, 1 का 1200 किसमें है? इसमें 1 का 1200 है ना? बाकी किसी में है? किसी में भी नहीं है, किसी में भी 1 का 1200 नहीं है। चलो ये करेक्ट है। यहाँ पे 1 का 4500 है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे 3 आपका है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 4500 ml, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन हुआ? सी होगा ना? सही कौन होगा? सी होगा, राइट? आपका, हाँ, सही है ना? मैंने सही किया है ना? हो सकता है मैंने भी कुछ गलत कर दिया हो। सही किया है ना? सही किया है, ठीक है, यस। तो चलो 5 लोगों ने सही किया है, बाकी सब ने गलत किया है। 5 लोगों ने सही किया है, 5 लोगों ने गलत किया है। ये क्वेश्चन करो, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स? वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, ग्राफ याद है कुछ? वाइटल कैपेसिटी, ये वाला ग्राफ याद है? ये आपका दोनों टाइडल वॉल्यूम हो जाता है ना? फिर ऊपर अगर ले जाओगे तो क्या होगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नीचे लाओगे तो इंस्पिरेटरी। नहीं, उल्टा हो गया। ये आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, राइट? फिर उसके बाद वाला रेसिडुअल वॉल्यूम होता था, फाइनल वाला रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अगर मैं रेसिडुअल वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं करूं, एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम, सब कुछ क्या है आपका? वाइटल कैपेसिटी। तो क्या होगा बताओ, व्हाट इज इट? बी। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम होगा ना? देखें कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। इस ग्राफ को बिल्कुल याद रखना हमेशा, कोई नेगेटिव नहीं होगा अगर ये ग्राफ याद रहेगा तो, ठीक है? और कोई क्वेश्चन देखते हैं, चलो। बस इतना ही है क्या? इतना, और भी बना सकते हैं, हाँ आप सब बना सकते हैं। चलो बनाओ तो इसको, क्वेश्चन नंबर 23 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 23, द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसके बारे में पूछ रहा है। देखो मैं रीलॉन्च करती हूँ। मैंने एक ग्राफ के हेल्प से कुछ बताया था कि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, सोचना और बताना। बहुत इजी है, मैंने बोला है ना, मैंने बता रही, वेट करती हूँ थोड़ा। 3 लोगों ने आंसर, अयो गलत कर दिया एक ने। बताया था मैंने मायोग्लोबिन और फीटस के हीमोग्लोबिन के बारे में, उनका ग्राफ कैसा होगा, लेफ्ट जाएगा, हाइपरबोला कब होगा। सॉल्व करो। बताया था ना, फीटस की जो हीमोग्लोबिन होती है उनका बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होता है। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। बी।
बी, सब कोई सुनो, वी, मैंने भी किया। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 करो। मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, लॉन्च करो फिर से। Majority of carbon dioxide produced by our cells is transported to the lungs as, कैसे जाता है बताओ? बाइकार्बोनेट्स। एकदम सही। 70% जाएगा बाइकार्बोनेट से, है ना? 7% जाएगा डिजॉल्व एंड 20 to 25% जाएगा हीमोग्लोबिन से, राइट? है ना? 90% of you have got the right answer. देखो कितना इजी है, बहुत इजी है। जब देखो ये सब बना ले रहे हो तो आपके टाइम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी बना लोगे, राइट? ये क्वेश्चन करो। हाँ पक्का। हाँ एकदम पक्का। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करो। मैं नहीं बता रही, सॉल्व करके देखो। What is true about RBC in humans? They carry 25% of CO2. What is true about RBC in human? What is true? स्क्रीन ब्रॉडकास्ट। On your screen. हाँ 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 हाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पता नहीं क्यों चला गया। आ गया, देखो आ रहा है, मतलब आ गया क्या? हाँ आ गया। Yes. They carry about 20 to 25% of CO2. सही है। They transport 99.5% of O2. They transport about 80% of oxygen, 20% of, and the rest 20% of it is transported in dissolved state. They do not carry CO2 at all. कौन सा करेक्ट है बताओ सबसे ज्यादा? A is correct ना? 20 to 25% CO2 को ले जाता है, राइट? एकदम सही। ये कर लिया हमने सारा, इस वाले में हमने सब कर लिया ना, इस पेज का सारा क्वेश्चन कर लिया है। मूविंग अहेड, एंडिंग द पोल, एंडिंग द पोल एंड कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? सब कर सकते हैं, अब तो सब कर सकते हैं। चलो 19 करो तो। एंडिंग द पोल। Of carbon dioxide released from body tissue that is present in Bulk of carbon dioxide released from body tissues into the blood is present as, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिलीज हुआ है, बॉडी से ब्लड में जो गया है, वो किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? बाइकार्बोनेट इन ब्लड, प्लाज्मा एंड आरबीसीज। कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है, 70% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड 30% बाइकार्बोनेट। ये तो गलत है बिल्कुल। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सबसे ज्यादा वो किस फॉर्म में होगा? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा। ऑप्शन बी क्यों लग रहा है? ए होगा ना? ए होगा मैम। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? किस फॉर्म में होगा? बाइकार्बोनेट में होगा, ब्लड और आरबीसी में, है ना? ब्लड, प्लाज्मा और आरबीसी में। मान, आकांक्षा, आप लोगों ने गलत आंसर किया है। मेरे को बताओ, क्या अभी कोई डाउट है? गलत नहीं रखना है मन में कुछ भी डाउट। बोलो, आकांक्षा है, नुमान। भाई देखो, ऐसा था ना आपका ब्लड वेसल, यहाँ पे आरबीसी बताया था मैंने। ये आरबीसी से ब्लड प्लाज्मा में ही तो निकला था बाइकार्बोनेट, निकला था ना ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में। कुछ आपका आरबीसी में होगा, बाकी सब आपका प्लाज्मा में होगा, है ना? आशा, आकांक्षा ने यही आंसर करा है। नुमान, आपका डाउट क्लियर हो गया? हाँ साक्षी, आरबीसी में भी कुछ होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि एकदम बाल्टी खाली कर देगा आरबीसी कि भाई तू सब ले ले। वो तो बंद, देखो जहां फैक्ट्री होती है, क्या फैक्ट्री को एकदम खाली कर देते हैं लोग? पूरा का पूरा कपड़ा फैक्ट्री,
मतलब आज मैं पूरे कपड़े फैक्ट्री के 0 कर दूं कपड़े वहां पे, वैसे होगा क्या? वहां पे कुछ कुछ तो रहेगा ही ना, हमेशा हमेशा कुछ कुछ तो रहेगा ही ना। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन तो कम है, ये तो आपका 20 to 25% होगा साक्षी, जब कार्बन डाइऑक्साइड से आरबीसी हीमोग्लोबिन से जब बाइंड करेगा तो ये तो बहुत कम परसेंटेज है ना। हाँ यस सृष्टि, चलो ये क्वेश्चन करो तो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा है, कॉन्सेप्ट वाला है, ये सॉल्व करो तो देखते हैं किसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। Which one is the possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? हम consciously कर रहे हैं तो क्या possibility है सोचो। One can breathe out air totally without oxygen. ठीक है, हम ऑक्सीजन के बिना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकते हैं पूरा। One can breathe out air through eustachian tube by closing both nose and mouth. One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. The lungs can be made fully empty by forceful. ये तो बिल्कुल गलत है, ये कभी हो ही नहीं सकता है ना। और सोचो अब, हम जब भी एयर को ब्रीद आउट करते हैं ना, रिमेम्बर डेड स्पेस वॉल्यूम, याद है डेड स्पेस वॉल्यूम 150 ml, वो तो मिक्स्ड एयर है ना आपका, वो तो मिक्स्ड एयर है। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो उसके साथ साथ वो 150 ml भी तो बाहर जा रहा है, तो ये भी गलत है ना। हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे। अब आपके पास बच गया है 2 और ऑप्शन। वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। ध्यान से सोचो, आपका यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है पता है आपको? आप अभी मैंने पढ़ाया नहीं है उसको। आपका जो कान होता है ना, ह्यूमन ईयर, उसमें एक यूस्टेशियन ट्यूब होता है मिडिल ईयर के पास। जब आपका इनर ईयर स्टार्ट होता है ना, मिडिल ईयर, आपके कान में 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। कितने पार्ट्स होते हैं? 3, आउटर, मिडिल एंड इनर। तो मिडिल और इनर के बीच में ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है फेरिंग्स से। कहाँ कनेक्ट होता है? फेरिंग्स। ये बोला मैंने ठीक है। हाँ हाँ यस सृष्टि, तभी अगर कान में कोई मेडिसिन डालते हो तो क्या होता है? मुंह में भी कड़वा लगता है, हाँ क्योंकि वहां से यहाँ भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ओके। फिर ये तो समझ आ गया कि आंसर बी है। सी ऑप्शन देखो एक बार क्या बोल रहा है। वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाय मूविंग द डायफ्रागम अलोन। हम डायफ्रागम को कंट्रोल अपने ही ऐसे नहीं कर सकते, पता है आपको? विदाउट डायफ्रागम कोई ब्रीदिंग नहीं हो सकती। वही तो। हाँ वही तो विदाउट डायफ्रागम कोई ब्रीदिंग नहीं हो। मान लो ऐसा हो सकता है कि हम रिब्स को यूज ना करें, कभी कभी एकदम आराम से बैठो, ऐसा हो सकता है कि हम रिब्स को यूज ना करें, लेकिन डायफ्रागम हमेशा यूज होता है। विदाउट डायफ्रागम इट इज इम्पॉसिबल टू डू ब्रीदिंग। समझे? पता है, सिर्फ डायफ्रागम वाली ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं। इंसान बिना एब्डोमिनल ब्रीदिंग के जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, इंसान, क्योंकि रोहित का एक क्वेश्चन है कि मैम ईयर वैक्स मुंह में क्यों नहीं आता? क्योंकि ईयर वैक्स आपका आउटर ईयर में होता है रोहित। आपका जो आउटर ईयर है ना, उसमें ईयर वैक्स होता है, ग्लैंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं सेर्यूमिनस ग्लैंड। वो सेर्यूमिनस ग्लैंड सेर्यूमेन रिलीज करता है एंड वही सेर्यूमेन आपका वैक्स होता है। CERUMEN, सेर्यूमेन। ओके, सो या समझ आया ना?
हाँ, मिहिका इज राइट। जो सिंगर्स होते हैं वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, है ना, अपने डायफ्रागम को मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, समझ में आया? आया। हाँ हाँ, चलो 17 करो। ये तो कर लिया 18 19। क्वेश्चन नंबर 17 करो। सब क्वेश्चन कर सकते हो एक्सेप्ट डिसऑर्डर, वो भी कर सकते हो, है ना, वो भी कर सकते हो। डिसऑर्डर को छोड़ के बाकी सब ट्राई करो करने का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करो एंड कल हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस प्लस डिसऑर्डर्स। उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो मेरा फेवरेट चैप्टर है, मुझे बहुत पसंद है वो चैप्टर। ठीक है, सॉल्व करो 17 वाला, लॉन्च करो बोल। मैम कल से न्यू चैप्टर? ना ना ना, कल हम इसको फिर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन बैंक का। आप सॉल्व करके आना, जो डाउट होगा वो पूछना, डिसऑर्डर्स भी करेंगे। बिना ठीक इसके है। कोई फायदा नहीं है ना, बिना इसके कोई फायदा नहीं है खुशी। बिना क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए पढ़ाई जीरो है। वो तो आप भी पढ़ सकते थे मेरे बिना भी, है ना। तो इसलिए हमें क्वेश्चंस करना जरूरी है। आपको समझ आता है कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, मैं यहाँ आपको सॉल्व करा रही हूँ ना, तो आई गेट टू नो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसे। जैसे नुमान ने सॉरी आकांक्षा ने नहीं किया था, सॉरी आकांक्षा, नुमान ने गलत किया था एक क्वेश्चन, तो मैंने समझाया उसको ना, उसी तरह सब लोगों को बोल रही हूँ, एक बार सॉल्व करो। जो जो नहीं सॉल्व होता है मेरे से पूछो कल, तो मेरे को आइडिया होगा कि मेरा ये स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करता है, मेरा ये स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करता है ना। और ऐसा नहीं मेरे से मिस्टेक नहीं होता है, मैं भी बहुत मिस्टेक करती हूँ, तो मैं स्टूडेंट से सीखती हूँ। आई लर्न फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, दैट इज वॉट इज माई फंडा इन माई लाइफ। ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं लगता मेरे स्टूडेंट है तो मैं सुपीरियर, वो नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा स्टूडेंट ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि आप लोग यंग ब्लड हो ना, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, राइट। इतनी ज्यादा नहीं नहीं। इतनी ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ी थोड़ी तो हुई आपसे बड़ी ना। तो क्वेश्चन कर लो, ठीक है, बहुत बातें कर ली, तब से बात किए जा रहे हो, बोला चुप रहने को, तब से बोले जा रहे हो। 17 करो क्वेश्चन। Large proportion of oxygen remains unused in the human blood even after its uptake by the body tissues. This oxygen, सही बात है ना, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि सारा ऑक्सीजन को एक ही बार खत्म कर ले। ऐसा करेंगे तो बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो हम ऑक्सीजन क्यों रखते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन को अनयूज्ड क्यों रखते हैं, क्यों? दिस O2 acts as a reserve during muscular exercise, raises the PCO2। ये तो एकदम गलत है, एकदम गलत है। अगर O2 ज्यादा है तो PCO2 कैसे बढ़ेगा? is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96%, helps in releasing more oxygen to the epithelial tissues। ये भी इतना सेंस नहीं बना रहा है। सोचो सोचो, मैंने एक बता दिया गलत है, बाकी आप सोचो, क्यों चाहिए हमें ऑक्सीजन रिजर्व में? ए मतलब आप सोच रहे हो कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हम ऑक्सीजन को रिजर्व करेंगे उसके लिए। समझता है, लॉजिक तो है पॉइंट में। ये तो गलत लग रहा है, सी गलत लग रहा है ना, इट इज एनफ टू कीप ऑक्सीजन, ये तो गलत ही है, ये बिल्कुल एनफ नहीं होगा, है ना। तो अब हमारे पास बच गया ए और डी। ए और डी क्या जरूरत है इसकी, इसकी जरूरत है क्या? ये तो ऑटोमेटिकली लेगा ऑक्सीजन एपिथेलियल सेल्स, इसकी कोई जरूरत है एज सच? बट मसल्स को तो बहुत ज्यादा जरूरत है। मान लो एक्सरसाइज किए, ऑक्सीजन की कमी हो गए तो बेहोश हो जाएगा वहीं पे, है ना। तो जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो बॉडी को सोच के रखना, ये बहुत जालिम है, ज्यादा एक्सरसाइज करेगा ऑक्सीजन मेरे से ही मांगेगा, कहीं और से नहीं लाएगा। इसलिए हमारी बॉडी ऑक्सीजन को रिजर्व करके रखती है। समझ में आया? बहुत इजी है यार, ह्यूमन फिजियोलॉजी समझोगे ना, सोच सोच के करोगे तो क्वेश्चन एकदम सही तरीके से लगेगा। ठीक है,
सो एंडिंग द पोल 3 लोगों ने गलत किया है, बाकियों ने सही किया है. ओके, सो विद दैट नोट आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो. कल की क्लास में पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, डिसऑर्डर वाला भी सॉल्व करना है ना. पक्का पक्का. तो डिसऑर्डर वाला भी सॉल्व करना, ताकि हम डिसऑर्डर भी डिस्कस कर ले साथ साथ और सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले. कोशिश करना कि कम से कम 2010 तक, मैंने आपको यहाँ तक 2010 तक का क्वेश्चन दिया था, कम से कम 2010 तक सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना. टाइम मिले तो सारा कर लेना, ठीक है, बट कम से कम मिनिमम 2010 तक करना. 10 साल, ठीक है, 10 साल 9 साल तक. कूल.